Hello बच्चे, a very good morning to you all. As you all are knowing that till now we have completed our chapter 7 till exercise number 7.9. So today we will be starting our exercise 7.10. Which exercise we will do beta? Exercise 7.10. Is it clear? So first of all, on every daily basis, in the same way I will be writing the questions for you. And what is your question, बच्चे? Your question is evaluate the following integrals. This is the main heading of your questions. Evaluate the following integrals. Is it clear, beta? You have to find the value of the following integrals. And your first question is, बच्चे, your first question is saying your these values which are tending, that is 0 to 1, and your question is x upon x square plus 1 dx. This is your first question. And your second question, बच्चा, second question is 0 to pi by 2, then under root of sin phi cos 5 phi and d phi. Is it clear, beta? This is your question number 2. And your question number 3. Your question number 3 is you have to find integration of 0 to power 4. 0 to 4 limit is there, and then is your sin inverse 2x upon 1 plus x square. Clear, बच्चे? Then is dx. Here I am writing your question number 4. 4 is the same 0 to 2 and x under root of x plus 2 dx. Then now I am writing your fifth question. Fifth one is, बच्चे, 0 to pi by 2. Clear? Then sin x upon 1 plus cos x dx. Here is your question number 6. What is your question number 6? That is 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x square. Is it clear? And here I am writing your question number 7. That is minus 1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. Clear, बच्चे? And here is your question number 8. Here is your question number 8. That is your limit is 1 to 0, 1 upon x minus 1 upon 2x square, 1 upon 2x square e to the power 2x into dx. And beta, your question number 9, question number 10 are your MCQ type questions. So these are your all questions which I will be telling you about today. Few of them I will be doing because all are following the same pattern. क्योंकि सारों का सेम पैटर्न है, इसीलिए मैं आपको कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी, बच्चे. So now I am going to erase the board and start with your first question. So this is how I have erased your all the questions from the board. Clear, बच्चे? And now I am going to solve your question number 1. Which question I will be solving, beta? Question number 1 I will be solving. That is your integration of 0 to 1. ये लिमिट है बेटा आपकी, लोअर लिमिट, and your upper limit then is 2x upon x square plus 1 dx. क्लियर बेटा? इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, वी विल डू लेट, हम इसको लेट करेंगे नीचे वाले को, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लेट करेंगे। क्लियर है, इसको लेट करेंगे बेटा, लेट करके इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना सबको आता है, दैट इज dt अपॉन dx। ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 1 का बेटा 0। तो आपका क्या आता है यहाँ पर dt इज इक्वल टू 2x dx। जो आपके क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, dt पुट कर सकते हो। क्लियर बच्चा। तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इन वैल्यूज को, 0 to 1 dt अपॉन t। t क्यों लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई है, दैट इज t, इसीलिए मैंने इसको t लिख दिया। अब इसका क्या करना है बच्चे, अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब आप 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log t। क्या आता है, log t। फिर मैंने बेटा आपको बताया था, अगर लिमिट्स ये जो लगी हुई हैं, आपके जो वैल्यूज जो लगी हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे, 0 यहां कर देंगे, 1 यहां कर देंगे। और उसका मीनिंग मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, इसका मीनिंग होता है कि आपको एक बार log में t के जगह पे क्या लिखना है, क्या लिखोगे बेटा, अभी t में कन्वर्ट भी करोगे आप इन वैल्यूज को। इज इट क्लियर। जब आप dt में जाएंगे तो आपकी वैल्यूज जो है ये बदलेंगी। आप यहाँ पे 1 0 नहीं लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। इसको मैं चेंज करूंगी, इस 1 0 की जगह आपकी वैल्यूज चेंज होंगी। कैसे, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो ऊपर वाली लिमिट आपकी 1 है ना बेटा, तो यहाँ पर ये 2 में चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैंने इरेज करके दोबारा किया है, देयर वॉज बाय मिस्टेक, सम मिस्टेक वॉज देयर। सो जब आप ये x की वैल्यू 1 पुट करोगे इस सब्सटीट्यूटेड पार्ट में, आपके t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। तो ये ऊपर वाली जो चीज है आपकी क्या बन गई है 2। अब नीचे क्या है 0, ऐसे ही आप 0 पुट करोगे x की जगह, पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया था, पुट x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा, ये बनेगा आपका 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाती हैं, 0 से 1 की जगह क्या बन जाएंगी 1 to 2। तो यहाँ लिखोगे आप 1 to 2। अब इसका मतलब है आपको t की जगह पे 1 to 2 पुट करना है। इज इट क्लियर। तो पहले आपका आएगा log 2, फिर आपका क्या आएगा log 1, इसको माइनस करेंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा। सो फाइनली योर आंसर द आंसर विच यू विल गेट दैट विल बी log 2, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। इज इट क्लियर, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा log 2। जल्दी से लिखिए इसको। क्लियर बेटा। नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 2 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन 3 मैं करा देती हूँ अभी आपको। क्वेश्चन 2 इज होमवर्क, आई एम मेंशनिंग हियर क्वेश्चन 2 इज होमवर्क बेटा। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन बच्चे। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग these are your upper and lower limits 0 to 1, and your question is saying sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इसके आने से फिर से आपको आता तो है ये करना। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, हम लेट कर लेंगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्वेश्चन आप बहुत पहले कर चुके हो इस चैप्टर में। तो हम x की वैल्यू क्या कर देंगे tan थीटा। tan थीटा करने से बच्चा इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dx अपॉन, क्लियर है बच्चे। इसका डिफरेंशिएशन करना है और ऊपर से जब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, जब आप पुट कर रहे हो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, जब आप इसमें पुट कर रहे हैं
तो बेटा आपका क्वेश्चन जो है ना वो चेंज होता है किसमें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है आपकी ये बन गई है। उसके बाद बच्चे क्लियर है, उसके बाद बेटा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाय डी थीटा की क्या आएगी वैल्यू, sec स्क्वायर थीटा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से dx की चाहिए, क्योंकि dx को वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना बेटा यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को dx की जगह रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनता है ये sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इज इट क्लियर बेटा? सो आपका क्वेश्चन यहाँ तक जो आया है वो आया है 0 to 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन इज योर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इज इट क्लियर बच्चे? अब आपको जैसे आपने इसको लेट किया है, अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो पहले हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू 1। अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो आपके थीटा की वैल्यू क्या आएगी? What will be your value of theta if x is equal to 1? If you are putting x is equal to 1, then your theta value will be beta pi upon 4। अगर आप 1 पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू pi upon 4 आती है। अगर आप ये नीचे वाला 0 पुट करते हैं, इट मीन 0 इज इक्वल टू tan थीटा करते हैं आप, तो बेटा आपके थीटा की वैल्यू आएगी, ये सब आप 9, 10, 11 में सीख चुके हैं, इसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगी। तो आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर बेटा? आपके 0 की जगह क्या आता है, 0 ही रहेगा, और आपके 1 की जगह किस में चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 में। इज इट क्लियर बेटा? तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है इसको, क्योंकि मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। 0 की जगह 0 आएगा और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका पाई बाय 4। अब जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे वैसे ही इसको करेंगे। जो ये आपकी आइडेंटिटी है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है sin 2 थीटा। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है बेटा इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो लिखी है उस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो इसको यूज करने के बाद बेटा आपका जो क्वेश्चन चेंज होता है दैट चेंजेस टू 0 to pi by 4, दैट इज 2 tan थीटा। इसके पूरे की जगह पे मैं ये sin 2 थीटा लिख दूंगी, sin 2 थीटा। इज इट क्लियर बेटा? फिर आपका ये आ गया sec स्क्वायर थीटा एंड देन इज योर डी थीटा। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है, इस क्वेश्चन में आप बाय पार्ट्स यूज करोगे। व्हाट यू विल यूज बेटा? यूजिंग बाय पार्ट्स। जो मैंने आपको 7.6 और 5 एक्सरसाइज में चीजें सिखाई थी उसको यूज करोगे, यूजिंग बाय पार्ट्स। जब यूजिंग बाय पार्ट्स आप करोगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा बेटा उसमें इंटीग्रेशन जो कर दोगे उसके बाद जो आएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि आपको आता है करना। तो योर क्वेश्चन विल चेंज इंटू 0 इंटू 2 थीटा tan थीटा, फिर इसकी वैल्यू बेटा पाई बाय 4 0, फिर उसमें से आप क्या करोगे माइनस करोगे, फिर से 2 क्या माइनस करोगे 0 से लेके पाई बाय 4 क्या बच्चे उसका इंटीग्रेशन है ये। दिस इज योर इंटीग्रेशन साइन 0 to पाई बाय 4, दैट इज योर 1 tan थीटा डी थीटा। ये सारा जो है ये आपका रफ पार्ट है जो मैंने आपको चीजें यूज की है इस क्वेश्चन के यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्लियर बच्चे? यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको? इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा इसके बाद का सॉल्यूशन लिखने के लिए, स्पेस नहीं है। सो आई एम गोइंग टू इरेज। मैं ये वाला पार्ट रफ कर देती हूँ, जो रफ साइड में मैंने चीजें यूज की थी ना इसको मैं इरेज कर देती हूँ बेटा, ताकि मैं इसके बाद का जो स्टेप है वो आपको लिख के शो कर सकूं। क्लियर बच्चे? ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट सम स्पेस टू द पार्ट आफ्टर दिस। इस स्टेप के बाद का जो पार्ट है मैं वो यहाँ लिख रही हूँ। उसमें क्या आएगा बेटा आपका, उसमें आपका आ जाएगा 2
2 करके आपका आएगा π/4, π/4 करके आपका आ जाएगा 10, 10 करके आ जाएगा π/4 और बेटा माइनस में 0। क्लियर है? जब आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ क्या लिखा हुआ था, माइनस और 2। अब आपको यहाँ पे 10 का क्या करना है, इंटीग्रेशन, और 10 का जब इंटीग्रेशन आएगा तो आता है बेटा वो लॉग, क्या होता है 10 का इंटीग्रेशन, लॉग कॉस थीटा। क्या होता है 10 का इंटीग्रेशन, लॉग कॉस थीटा। जब लॉग कॉस थीटा हो जाएगा उसके बाद बेटा आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज जो चेंज हुई थी वो आप इसमें पुट कर दोगे। क्या वैल्यूज चेंज हुई थी आपकी, ठीक है बच्चे, उसको लिख दोगे आप इसमें 0 to π/4। इज इट क्लियर? 0 to π/4। अब इसके बाद फाइनल आंसर हम निकाल देते हैं, दैट इज योर, और ये माइनस करके बेटा ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, एंड देन योर फाइनल आंसर विल बी π/2 plus 2 log 1/√2 minus 0, and finally the answer which you will get is π/2 minus log 2। Is it clear बेटा? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा सा कराया था ताकि आप इसकी जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं। ओके बच्चा, सो नाउ आई विल बी इरेजिंग योर क्वेश्चन नंबर 3 because this is a very small type of exercise। 3 के बाद बच्चे बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, दिस इज योर होमवर्क। ये आपके होमवर्क है। नाउ आई विल बी डूइंग योर क्वेश्चन नंबर 9। विच क्वेश्चन बच्चा? क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। Is it clear? Understood beta? Okay, now we will be doing question number 9. So your question number 9 is, what is your question number 9? The value of integral, the value of integral क्या है क्वेश्चन? 1/3 to the power 1 x minus x cube upon x to the power 4 और whole power 1/3। Is it clear बेटा? पावर 1/3 dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकेंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज 4। यहां मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी आपको, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 बेटा? इफ fx इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt, देन आपको क्या निकालना है? देन f डैश x की वैल्यू आपको निकालनी है। इज क्या आएगी आपकी f डैश x की वैल्यू? बेटा ऑप्शंस है आपके। फर्स्ट ऑप्शन विल बी cos x plus x sin x। क्लियर? देन योर सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड ऑप्शन इज x sin x। सिमिलरली योर थर्ड ऑप्शन इज बच्चा x cos x एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज बच्चे sin x plus x cos x। ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है बेटा आपके। अभी मैं हल्का सा हिंट दूंगी आपको इनको सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज लिटिल बिट लेंथी, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। आप इसमें क्या करोगे? पहले यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं हिंट दे देती हूँ आपको। ओके, हम इसमें क्या करेंगे बेटा? ये जो 9th क्वेश्चन है आपका,
इंटीग्रल ऑफ 1/3 then x minus x cube whole to the power 1/3 then x to the power 4 dx। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, हम ये लेट कर लेते हैं। इसके बाद आपके dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा आ जाएगी। अब हम इन चीजों को इसमें पुट करेंगे। जब हम 1/3 पुट करेंगे बेटा तो आपके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, और आपके इस क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन से। और जब बेटा मैं इसमें x इज इक्वल टू 1/3 पुट करूंगी तो आपके थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई। जब x इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे बेटा तो आपके थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, और जब मैं आपके x की वैल्यू 1 पुट करूंगी बच्चे तो आपके थीटा की वैल्यू आएगी पाई/2। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/3 पाई/2, x की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू होल टू द पावर 1/3 अपॉन साइन 4 थीटा। और ये बच्चे आपका dx की जगह पे आ जाएगा, यहां से dx के बाद ये d थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका cos थीटा और d थीटा। ठीक है बच्चे, cos थीटा एंड d थीटा आ जाएगा आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन कन्वर्ट होते होते स्टेप बाय स्टेप, जब इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे आप, जब इसे सारी आइडेंटिटीज वगैरह लगाओगे बेटा, 4-5 स्टेप मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद से कर लेना। देन फाइनली यू विल गेट साइन इनवर्स 1/3 पाई/2। पूरी सब आइडेंटिटीज यूज करने के बाद ये चेंज हो जाएगा आपका कॉट 5/3 थीटा, देन बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर इसके बाद आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, और वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनल आंसर जो आपका आएगा, जो ये कन्वर्ट होगा बेटा आपका, देन व्हाट यू विल गेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to √8 t to the power 5/3। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद क्लियर बच्चे। तो फाइनली आपका आंसर जो है, यू विल गेट योर आंसर लिमिट पुट करने के बाद 6, बट यू विल गेट 6। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस। आप थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताया बच्चे। नाउ आई एम मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू लुक टू द राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है उसमें आप देखिए क्या लिखा है। राइट हैंड साइड में योर RHS इज रिटर्न, दिस इज योर 10th हिंट आई एम गिविंग, दैट इज fx इज इक्वल टू 0 to x t sin t और dt, ये लिखा हुआ बेटा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इसमें यूजिंग बाई पार्ट्स करोगे, यूजिंग बाई पार्ट्स जो मैंने सिखाया था आपको, यूजिंग बाई पार्ट्स आप करोगे। देन यू विल गेट योर fx इज इक्वल टू t माइनस cos t पाई x देन 0 माइनस
0 to x 1 माइनस cos t इंटू dt। उसके बाद बेटा ये आपका आया माइनस एक्स cos x प्लस साइन t x 0 and then you will get minus x cos x प्लस साइन x। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा। Therefore your f dash x, अब इसको डेरिवेटिव कर दोगे आप, जो ये आया है इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या आएगा बेटा, माइनस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर एक्स साइन एक्स। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होता है आपका डेरिवेटिव। सो योर ऑप्शन इज बी, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास बच्चे। सो टुडेज होमवर्क, व्हाट इज योर टुडेज होमवर्क, व्हाट इज योर टुडेज होमवर्क बेटा, जैसे कि यूजुअली आपको हर रोज मिलता है। योर टुडेज होमवर्क इज टू कंप्लीट exercise 7.10 in your fair notebook and ask doubts if any. In next video, in next class beta, I will start your exercise 7.11 or I will take your doubts. Clear बच्चे? So this was all about your class today. Hope you have understood. Thank you.